Hello everyone, good evening. I hope everyone is doing well and I'm audible. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so hi, myself Payal. So today I'm gonna take webinar on technical analysis for beginners, and with me Mr. Ajay Mehra is there. So in this we will learn how technical analysis is being used and what beginners should learn. So let's start with our webinar. Okay. Okay, so technical analysis is means of examining and predicting price movement in the financial market by using historical price charts and market statistics. So it is based on the idea that if traders can identify previous market patterns, they can form a fairly accurate prediction of future price trajectories. So it is one of the two major school of market analysis, the other being fundamental analysis, whereas the fundamental analysis focus on assets of true value with the meaning of external factors and intrinsic value both considered. So technical analysis is based on purely price chart of asset, and it is identification of a pattern of chart that it is used to predict future movements. So Mr. Ajay will tell us about the difference between fundamental and technical analysis. वेरी गुड इवनिंग टू माय फ्रेंड्स व्यूवर्स, जो भी कहो, मैं ये ज्यादा करके हिंदी में ही बोलने वाला हूँ और कुछ कुछ वर्ड्स अगर चाहिए तो वो इंग्लिश में हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल हम क्या है ना, हम कोई भी कॉन्टिनेंट या हम कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को हम फंडामेंटली एनालाइज करते हैं, जैसा कि जो भी उनके नंबर्स आते हैं वगैरह, जॉब्स रिपोर्ट हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गए वगैरह, तो उस हिसाब से हम फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस हमें ट्रेडिंग में ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये एक्चुअली चेंज होते रहते हैं एवरी मंथ। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस ये रहता है कि भाई हम चार्ट्स को एनालाइज करके मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना है, मतलब ट्रेंड पहले एनालाइज करना है। सबसे पहले ये मार्केट में हमें एक याद रखने का है, टेक्निकल एनालिसिस जो भी हम करते हैं, एक ही चीज का हमें ध्यान रखना है, क्या भाई ये मार्केट में हमारा एक ही फ्रेंड है जिसका नाम है ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे हम मार्केट में जीतेंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करेंगे हमें मार्केट से हारना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो हमें बाय करना है और डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल करना है। ट्रेंड के साथ जाते जाते ही हमें इस मार्केट में आगे बढ़ना है, और आगे कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, वो भी मैं आपको थोड़ी समय में बताऊंगा। यस मिस पायल। तो काफी अच्छी तरीके से जिससे मिस्टर मेहरा ने हमें बताया टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो हम अभी आगे देखते हैं। जैसे काफी ज्यादा as there are plenty of ways to analyze whether investment हमारा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हम लोगों को कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए, और इकोनॉमिक डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। Okay, or technical analysis is becoming an increasingly popular approach to trading, and we should actually thanks to the advancement of charting package and trading platform. Because of that, we are able to do technical analysis and trade. So, however, for novice trader, understanding technical analysis and how it can help predict the trend in market, it can be like daunting or challenging at the first. मतलब काफी लोगों को ऐसे रहता है कि हम लोगों को कैसे हम चैलेंज फेस करेंगे, कैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, हम कैसे उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस काफी बेहद अच्छा है उनको ट्रेड करने के लिए। And also, technical analysis is a study of price movement in the market, whereas traders make use of historical charts, patterns, indicators to predict future trends in the market. So it is visual representation of past and present performance also. And it is the price action indicators, patterns to guide, inform market trend before entering or exiting a trade. So technical analysis beginner's guide will introduce you to the basic of the trading approach and how it will be used for the financial market. So
technical analysis are using charts to identify trading signals, and it will be also excited at the first and challenging at the first. So now, Mr. Ajay, according to you, how beginners can work on technical analysis? जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हमें फॉलो करना है ट्रेंड। अभी मार्केट में 3 किस्म की ट्रेंड रहती है, एक रहती है अप ट्रेंड, एक रहती है डाउन ट्रेंड और तीसरी रहती है कंसोलिडेशन। खैर अभी आज हम कंसोलिडेशन पे तो हम बात नहीं करेंगे ज्यादा, पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे। अप ट्रेंड का मतलब ये रहता है व्हेन द मार्केट इज मेकिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो। हायर हाई और हायर लो अगर मार्केट्स बनाते जा रहे हैं उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, और अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो ये जो मार्केट स्विंग हाई और जो स्विंग लोज बनाता है उसे हमें यूज करना है टू मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट सपोर्ट पे आती है और हमें बुलिश प्राइस एक्शन देती है तो हमें बाय करना है, रेजिस्टेंस पे आती है और अगर बेयरिश प्राइस एक्शन देती है तो हमें सेल करना है। और एक चीज, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो ओल्ड जो सपोर्ट है इट बिकम्स अ न्यू रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ओल्ड रेजिस्टेंस बिकम्स न्यू सपोर्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, प्राइस एक्शन देखते हुए, जैसा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता रहेगा, जो अभी कुछ दिन पहले वेबिनार हुआ था उसके हिसाब से जो भी अच्छे पैटर्न्स तैयार होते हैं उसके हिसाब से अगर हम बाइंग और सेलिंग करेंगे तो वो हिसाब से हमें मार्केट में ज्यादा करके मुनाफा होगा। लेकिन मुनाफा होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने सब कुछ एनालाइज किया और मार्केट हमारे फेवर में जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट है, हमें पता रहना चाहिए वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट। अगर सपोर्ट पे बाय किया, सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें निकलना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम कितना भी एनालिसिस कर ले वी आर इनटू अ बिजनेस व्हिच इज ऑफ नो गारंटीज, जो जैसा ये बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं। यस मिस पायल। Yeah, in short, we can also say this also. Beginners should first understand why technical analysis work as a window into the market and to identify what opportunities they are getting to get profit in their trades. And also, they should focus on a particular trading approach and develop a disciplined strategy that you can follow without letting emotions or second guessing get in the way. So you can find a broker that can help you to execute your plan affordably while also providing a trading platform with a right suit to tool your needs. So now we will see the understanding of technical analysis by Mr. Mehra. तो अभी तक आई एम श्योर कि आप लोग समझ करेंगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने का मतलब यही रहता है कि भाई सबसे पहले तो हमें अगर टेक्निकली मार्केट में काम करना है ना, तो मार्केट में बहुत किस्म के ये मल्टीपल चार्ट्स रहते हैं, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक। तो जितना हो सके हमें डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि बड़े चार्ट पे जो मार्केट ट्रेंड फॉर्म करेगा वो ट्रेंड पे हम एटलीस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं। छोटे चार्ट्स पे मोस्टली हमें फॉल्स ब्रेक्स ही मिलेंगे, जिसमें हम एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे, लॉस करेंगे और अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि मार्केट खराब है, मार्केट में लॉस होता है। वैसा नहीं है, मार्केट में लॉस नहीं होता है। अगर आप स्पेकुलेट करोगे, स्कैल्पिंग के इसमें रहोगे तो मार्केट में लॉस होगा। मार्केट स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, ये भी एक किस्म का साइंस है जो जो आपको एनालिसिस करना है। अगर आप एनालिसिस सही से करेंगे और उसको अमल करेंगे, उसमें ट्रेड करेंगे तो ही आपको मुनाफा होगा। अगर एनालिसिस में अगर कुछ गलती हुई है और फिर भी आप मार्केट से निकल जाते हो तो भी इट्स वेल एंड गुड। अगर आप अपने ट्रेड को पकड़ के बैठेंगे कि नहीं भाई एक ना एक दिन वो मुझे मुनाफा देके जाएगा, वो हो सकता है देके भी जावे, लेकिन उसके पहले वो इतना फ्लोटिंग आपका इंक्रीज कर देगा कि आप मार्केट में काम करने से डरने लग जाएंगे। जी पायल जी। काफी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया कि हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस कैसे समझना चाहिए। और अब मैं आती हूँ बेट टेस्टिंग पे। बेट टेस्टिंग क्या होता है? एक्चुअली it is a common for technical analysts to test how their strategies would perform before risking any actual capital by applying it to market previous price movement. So इसे हम bet testing कह सकते हैं। And also it involves taking a chunk of real data from a selection of market and running strategy against it. So if the bet testing works, traders and analysts will develop the confidence to use the technical analysis as the basic of entering live positions. And in fact, if some traders become so confident in how their strategies will perform and they decide it automatic, so they can trade easily. So now
we will see, as you can see below the chart, RSI and MACD indicators हम लोग ने दिए हुए हैं, तो मिस्टर मेहरा हमें indicators के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मार्केट में तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो जो हम यूज करते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे जो कॉमन इंडिकेटर्स है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले जैसे पायल जी ने पूछा है क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे हम कहते हैं आरएसआई। आरएसआई का जो फंडा है वो ऐसा रहता है, इट इज 70 एंड 30। अगर 70 के ऊपर मार्केट चली जाती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ओवरबॉट रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट इज ओवरबॉट। और अगर वो 30 के नीचे है तो इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब वो काफी ओवरसोल्ड है तो वो एक पुल बैक देगी, तो उसके वजह से फिर हम उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और जो सेकंड इंडिकेटर जो है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ऐसा होता है ना कि हमें दो किस्म का हम मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। मैं आप लोग को सलाह ये दूंगा कि जितना हो सके 10 एंड 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करें, और उसे क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं करते हुए जितना हो सके उसे यूज करें एज अ मीन। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ज्यादा ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट इज अबव द एवरेज प्राइस, और मूविंग एवरेज से ज्यादा नीचे तो इट इज बिलो द एवरेज प्राइस। तो हमें वेट करना चाहिए मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए अपने मीन को, उसके बाद ट्रेंड के हिसाब से हमें बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। और इंडिकेटर्स तो ऐसे बहुत है मार्केट में, इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं खाली एक कंफर्मेशन के लिए, लेकिन आगे जाके आप लोग को पता लग जाएगा कि कितना भी इंडिकेटर्स यूज करो, जितना प्राइस एक्शन और ट्रेंड फॉलो करेंगे उससे अच्छा ये मार्केट में और कोई इंडिकेटर काम नहीं कर सकता है। तो पायल जी मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा, क्या ये सीरियसली टेक्निकल एनालिसिस हमें यूज किस तरीके से करना है? Yeah, sure. Technical analysis, as in it is an attempt to focus the price movement of virtually any tradable instrument that is generally subject to force of supply and demand. Mostly it is depend on supply and demand, and including stocks, bonds, futures, and currency pairs. And in fact, some of the technical analysis are simply a study of this supply and demand only. So technical analysis most commonly applies on price change, but some analysts track number rather than just price. So such traders volume or open interest figures. So technical analysis is overall across the industry. There are hundreds of patterns and signals that have been developed by the researcher and supporter for the technical analysis trading. And technical analysts have also developed a numerous type of trading system to help and forecast the trade on price movement. And there are also some indicators also that should be focused primarily on identifying the current market trend, including support resistance area, because support and resistance plays a very important role in technical analysis, while other focused on determining the strength of the trend and likelihood of its continuation. And commonly, technical indicators are used, and charting pattern includes trend lines, channels, moving average, momentum indicators. There are lots of things to be learned in technical analysis, and many traders have found technical analysis to be useful tool for risk management also, which can be a key of difficulty. Once a trader understands the concept of principle of technical analysis, it can apply to any market, making it a flexible analytical tool. So now we will see how technical analysis can help the traders. Okay, that we will see in chart patterns. अभी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूछा है कि भाई वो हमें हेल्प कैसे करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए उसमें वेरियस चार्ट पैटर्न्स भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है, और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द पिलर ऑफ दिस मार्केट। हमें एक चीज और समझ के चलना है, टेक्निकल एनालिसिस को हम इतना वेटेज क्यों दे रहे हैं फंडामेंटल के सामने, क्योंकि मार्केट में एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। कभी कभी आप लोग ने ये भी देखा रहेगा कि भाई कोई कॉन्टिनेंट या कंट्री का डेटा खराब आने के बाद भी प्राइस ऊपर जाती है, और डेटा अच्छा आने के बाद भी प्राइस नीचे जाती है। उसकी वजह यही है कि वो न्यूज आने की वजह से मूवमेंट नहीं होती है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रहता है। ट्रेंड के हिसाब से ही मार्केट जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के बाद वो फिर निकल जाती है। अभी हम थोड़े चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, जो मेन रिवर्सल पैटर्न जो फॉर्म होते हैं, जैसा हेड एंड शोल्डर्स हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप डबल बॉटम,
ये सब पैटर्न्स पे हमें ध्यान रखते हुए भी हम काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम ट्रेंड रिवर्सल्स पहले स्पॉट कर सकते हैं मार्केट में एक्चुअल ट्रेंड चेंज होने से पहले। लेकिन उसे किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या हमें करना है, उसके बारे में इन फ्यूचर अगर जब कुछ और भी अच्छे वेबिनार्स हम कंडक्ट करने वाले चार्ट पैटर्न्स के बारे में, उसमें मैं आपको उसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यस मिस। और हाँ, जैसे कि मार्केट में इमोशंस का काफी लोग इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो एक्चुअली मार्केट तो इमोशंस पे बिल्कुल नहीं चलता है। वो जस्ट एक कहना रहता है कि आज ऐसा लॉस हो गया या आज काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो वो उनके ऊपर है कैसे वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं। बट इट इज लाइक इमोशनलेस मार्केट, कभी भी इमोशंस पे नहीं चलता है। वो जस्ट एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल पे बेस होता है। सो मार्केट को हम लोगों को अच्छे से समझ के चलना चाहिए कैसे वो जा रहा है। अगर अप ट्रेंड है तो हमें कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ना कि हम कभी मार्केट के अगेंस्ट आके कुछ करें। तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों को काफी लॉस हो सकता है। सो इमोशनलेस होके हम लोगों को मार्केट में चलना चाहिए। एंड नाउ वी विल सी charts like bar chart, candlestick chart, line chart. So Mr. Ajay will explain us bar chart, line chart and candlestick chart. जैसा हमें पता है टेक्निकल एनालिसिस कोई अभी का इन्वेंशन नहीं है, ये मार्केट जब से है उसी समय का इन्वेंशन है। सबसे पहले मार्केट में आया था जो था लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट कैसा था कि हम सिर्फ लाइन को देख के खाली एनालाइज करते थे कि लाइन अगर स्ट्रेट चल रहा है मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लाइन ने अगर अप टर्न लिया तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और वापस अगर लाइन ने डाउन टर्न लिया तो वो नीचे जाता है। बट वो एनालिसिस करने में दिक्कत हो जाती थी क्योंकि वो लाइंस कभी भी चेंज हो सकती है। उसके बाद थोड़ा एडवांस वर्जन आया बार चार्ट, लोग बार देख के उसको एनालाइज करने लगे। अगर बार ज्यादा बड़ा है तो मतलब ऊपर जाएगा, बार छोटा है तो फिर वो हिसाब से कंसोलिडेट करेगा, और अगर बड़ा बार एकदम नीचे की तरफ बने तो नीचे जाएगा। लेकिन वो भी मतलब उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी जो जिसके वजह से ट्रेडर्स को दिक्कत हो रही थी। फिर जैपनीज कैंडलस्टिक करके एक कैंडलस्टिक पैटर्न निकला है जो कि अभी बहुत मार्केट में और उसकी वैल्यू है और वो ट्रेड हो रहा है, क्योंकि कैंडलस्टिक्स का वैल्यू ये है कि भाई कैंडलस्टिक्स में हमें पता लगता है कि भाई मार्केट में एक्चुअली वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम के साथ कौन से कैंडल पे अपने को बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ पर प्लेस करना है, प्रॉफिट ऑर्डर हमें कहाँ पर प्लेस करना है। तो कैंडलस्टिक चार्ट है वही सबसे अच्छे चार्ट है ट्रेड करने के लिए। अगर हम इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में प्राइस एक्शन के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड के साथ अगर उसको यूज करते हैं, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मार्केट में नहीं है जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बट एक चीज याद रखना है, कितना भी आप टेक्निकली उसको अच्छे से एनालाइज करो, आपको ट्रेडिंग अपने रेंज में करना है, लिमिट में करना है, क्योंकि अगर आपने ओवर ट्रेड किया तो आपका पैसा मार्केट में डूब सकता है। पायल जी, मुझे आपसे एक चीज ये जानना था, क्या आप बताएंगे कि भाई हिस्ट्री एक्चुअली टेक्निकल्स में हिस्ट्री रिपीट होती है क्या? जी जरूर, मैं कहूंगी कि हिस्ट्री रिपीट होती है। लाइक technical analysis is largely based on uncovering common patterns, finding those patterns again and using them to trade. Like I cannot say कि हिस्ट्री बार बार वैसे ही रिपीट होती है। लाइक वी कैन से कि हर बार अलग अलग तरीके का हम लोगों को कुछ ना कुछ देखने मिलता है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, देर आर कॉमन चार्ट पैटर्न्स कॉल्ड एज ट्राइंगल। द जनरल construct is always similar, but each time it will be like a bigger or smaller than the last triangle and may break out in different direction than the prior one. So therefore history repeats in a general way, not necessarily producing an exact replica of prior pattern. So realizing that human philosophy doesn't change much and technical analysts understand, we will continually see the rise and fall of the asset prices as traders and investors play out an emotion of fear and greed. So that emotions as well as the other create patterns in asset prices across the time frame. The technician is able to recognize these patterns and then trade them using history as a guide to current price and catalyst. Okay. तो पायल जी ने काफी अच्छे से हमें समझाया कि भाई किस तरीके से हमें ये हिस्ट्री है जो रिपीट होती है, हमेशा नहीं कि बार बार सेम होगा, लेवल्स चेंज होते हैं, मार्केट चेंज होती है, प्राइसेस विल चेंज, लेकिन जो भी है हिस्ट्री का काम है रिपीट करना, जो कि वो करेगी। हाँ, तो पायल जी आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ और लाइट थ्रो करना चाहेंगे जरा प्लीज?
Yeah, I would like to tell about the indicators. Like indicators are used by the technical traders when looking to the opportunity in the market. As although many indicators exist, traders often make use of volume, price-based indicators, and there are also assets in determining where the level of support and resistance are and how often they are maintained or breached, as well asserting the length of the trend. So traders can view the price or other indicator using multiple time frames ranging from 1 second to a minute. It's up to them how much time frame and which time frame they have to take, and which gives the trader a different perspective from the price actions. So Mr. Ajay will elaborate the further. तो जैसा अभी पायल जी ने आपको बताया कि भाई टेक्निकल्स को हमें किस तरीके से हमें यूज करना है, प्राइस को किस तरीके से देखना है, और जैसा मैंने भी आपको कहा है और मैं बार बार कहूंगा कि भाई जब भी आपको मार्केट में ट्रेड करना है, सबसे पहले ट्रेंड, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे ही आपको अपना फोकस रखना है। इंडिकेटर्स तो बहुत से हैं, 1760 किस्म के इंडिकेटर्स है। आपको मैगडी मिलेगा, स्टोकेस्टिक्स मिलेगा, आरएसआई मिलेगा, वगैरह वगैरह जो भी मिलेगा। कोई इंडिकेटर ट्रेंड के सामने काम नहीं करेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, चाहे तो लिख के रख देना। मार्केट में दोस्ती करना है तो ट्रेंड के साथ करो, और उसके अलावा कोई दोस्त कोई चीज आपको मार्केट में हेल्प नहीं करेगी, और ना ही आपको उसमें से बाहर आने का मौका मिलेगा। ट्रेंड ही एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट में हेल्प करके आपको सीखने मिलेगा कि भाई किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट होती है, कहाँ पर बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जो ऑर्डर्स किस तरीके से प्लेस करते हैं, कैसे ट्रेंड्स चेंज होती है। रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में हम इन फ्यूचर वेबिनार में बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। यस मिस। हाँ, तो पायल जी अभी मुझे एक चीज ये पूछना था, क्या हम टेक्निकल एनालिसिस को रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज कर सकते हैं क्या? जी जरूर। जैसे टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंबाइन करके हमें एक्चुअली चलना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर हम लोग प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इफ हमने रिस्क को मैनेज नहीं किया एंड अपना एनालिसिस काफी अच्छा गया एंड मार्केट कभी भी हमारे अगेंस्ट आ सकता है। इट्स नॉट लाइक कि मार्केट हमेशा हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसा ही चलेगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, लाइक मार्केट में कैसे हम लोगों को ट्रेंड पे ऊपर जाना है, कैसे सिग्नल्स दे रहे हैं, एंड इफ आपने रिस्क नहीं मैनेज किया तो आपका अकाउंट स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। एंड अगर आप लोगों ने अच्छे से अपना मार्केट प्रिडिक्शन दिया तो आपका टारगेट हिट होकर आपको प्रॉफिट भी आ सकता है। सो मिस्टर अजय, क्या आप बता सकते हैं कैसे रिस्क मैनेज करना चाहिए? हाँ पायल जी, आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा है, और सबसे एक लाइन आपने बहुत अच्छी कही कि आप कितना भी एनालाइज कर लो, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट है और आप ओवर लिवरेज है, अगर आपने ज्यादा रिस्क लिया है, तो आप मार्केट में कभी बाहर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स, आपको एक चीज याद रखना है, जितना हो सके जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टेड कैपिटल का 1 या 2% ही है जो आपको रिस्क करना है। मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में एक चीज बताता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, तो द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो होता है 1:3। इसका 1:3 का मतलब ये रहता है, अगर आपका 50 बिप्स का स्टॉप लॉस है, तो कम से कम 150 बिप्स का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। 1:2 कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा सेटअप है जो 1:1 है, उसमें ट्रेड करके मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें आप रिस्क 1 का ही ले रहे हो, रिवॉर्ड सिर्फ 1 पाने के लिए। हमें रिस्क कम लेना है, रिवॉर्ड ज्यादा लेने का है। अगर हम 1:3 का सेटअप लेते हैं तो उसे हम कहते हैं 3R, मतलब 3 टाइम्स द रिस्क इज द रिवॉर्ड। और अगर रिस्क रिवॉर्ड हम मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर समझो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए, आप वो लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर हम 10 ट्रेड कर रहे हैं, 10 में से 5 भी अगर आपके एसएल जाते हैं और 5 भी टेक प्रॉफिट होता है, अल्टीमेटली आप जीतेंगे, क्योंकि 1:3 के हिसाब से आपका 50-50 करके 5 बार गया, लेकिन 150-150 करके 5 बार आया है। तो इन शॉर्ट, लॉसेस लेने से हमें डरना नहीं है, रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो देखना है, और एनालिसिस हमारा कितना भी अच्छा हो, अकाउंट साइज के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। और जो जो बेस्ट फंडा है, जो जो बहुत लोग यूज करते हैं, इक्विटी डिवाइड बाय 20,000 आपका लॉट साइज होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हो तो इसका मतलब यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, या आपको मार्केट पे इतना ट्रस्ट है कि जैसा आपने सोचा वैसा चलेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली रातों रात अगर बैकफायर हो गया, आप रात में सोए, सवेरे उठ के देखोगे अकाउंट वॉश आउट, और पूरा टाइम आपका बिगड़ जाएगा। यस मिस। तो काफी अच्छे तरीके से हम लोगों को मिस्टर अजय ने रिस्क के बारे में बताया है, और काफी ज्यादा हम लोग ने चीजें इसमें कवर करने की ट्राई की है।
फॉर द बिगिनर्स टेक्निकल एनालिसिस कैसे होना चाहिए। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो वो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। थैंक यू। अरुण कुमार जी, यूट्यूब का कोई लिंक का एम ट्रेडिंग इंडिया अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगी ये वीडियोस। और किसी को कोई क्वेश्चंस है वेबिनार रिलेटेड? मैम मार्केट का जो ट्रेंड है उसके बारे में दोबारा बताएंगे प्लीज। एक्चुअली ट्रेंड के बारे में आप क्या जानना चाह रहे हैं सर? अगर आपका सवाल स्पेसिफिक रहेगा तो मैं आंसर दे सकता हूँ आपको। कभी कभी एक्चुअल में मैं जब ट्रेड कर रहा था सर तो उसमें ट्रेंड जो है वो अपर साइड, बट सडनली एक ऐसी ट्रिक हुआ कि वो सडनली नीचे डाउन हो गया विद इन 1 मिनट। तो हाउ अगर कैन डिफाइड सर? उसके लिए मैंने आपको जो दो मूविंग एवरेज दिए थे 10 एंड 20 एक्सपोनेंशियल, पहले उसको अप्लाई कीजिए। मार्केट कितना अप ट्रेंड में है, अगर वो एवरेज से काफी ऊपर है, चाहे वो कितना भी अप ट्रेंड में, हमें पहले बात तो बाय नहीं करना है। तो उसमें ये हो सकता है कि ट्रेंड चेंज नहीं होता है, मार्केट पुल बैक देता है और हमें फियर आ जाता है कि भाई अभी क्या भाई ट्रेंड चेंज हो गया और लॉस हो गया। ट्रेंड का चेंज मैंने आपको बताया, अगर उसने हायर लो जो वो बना था, अगर पहला लोअर लो फॉर्म किया तो ही इट्स अ वार्निंग सिग्नल कि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, और पहला लोअर हाई बनाया तो ही इट्स अ वार्निंग सिग्नल कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब तक वो नहीं होता इट इज जस्ट अ नॉर्मल पुल बैक, और उसको यूज करने के लिए आपको मीन यूज करना है जो मैंने मूविंग एवरेजेस बताए हैं, उसके हिसाब से आप करेंगे तो आप एकदम ऊपर में बाय नहीं करेंगे, एकदम नीचे में सेल नहीं कर पाएंगे। ओके सर, जी थैंक यू सर। हेलो बोलिए सर। सर, रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा क्लियर कर दें। जैसे $1000 का अकाउंट है तो कितना रहना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड? 1000 डिवाइड बाय 20,000 शुड बी योर लॉट साइज में। मेरे हिसाब से 0.05 का लॉट आपको लेना है। और जो भी ट्रेड सेटअप आप लेते हो, जैसा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो ना, तो आपको जितना हो सके ना 1:2 या 1:3, मैक्सिमम 1:2.5 का ही कॉल लेना है। क्योंकि अगर मार्केट कभी रेजिस्टेंस ब्रेक करती है और आपके पास ऊपर स्पेस ही नहीं है, जहाँ के मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस 30-40 पिप्स और ऊपर है, तो ऐसे ट्रेड्स आपको अवॉइड करना है। क्योंकि इस तरीके में हो सकता है कि मार्केट ने आपको फॉल्स ब्रेक दिया है। जहां पे रेजिस्टेंस क्लोज होते हैं ना, तो जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है जब तक उसको ब्रेक करके कंफर्म क्लोज नहीं देता है और रिटेस्ट करने नहीं आता है वो लेवल को, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है सर। क्लोज का जो बता रहे हैं वो 4 आवर की विंडो से क्लोज बताएंगे अपन या 1 आवर? डिपेंड्स आप कौन से चार्ट पे कर रहे हो। 4 आवर पे करे तो 4 आवर कैंडल क्लोज होना चाहिए, डेली पे करोगे तो डेली कैंडल उधर क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर, तो ही उसको ब्रेक माना जाएगा, अदरवाइज इट इज जस्ट अ फॉल्स ब्रेक। ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, ये ओपन इंटरेस्ट कहाँ चेक कर सकते हैं? इसका बढ़ रहा है कम हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट ऐसा नहीं रहता है। जैसा अगर आप कोई डेली चार्ट चेक कर रहे हो और अगर आपको चेक करने का है ना, तो जो कैंडल क्लोज हुआ है उसके ऊपर आप अपना माउस रखिए और आपको ओपन, हाई, क्लोज, लो और वॉल्यूम्स सब कुछ दिख जाएगा सर। अच्छा अच्छा, चार्ट पे ही? चार्ट पे ही, यस, चार्ट पे आपको वो सब चीजें अवेलेबल हो जाएगी। आपको खाली अपना कर्सर रखना है और वो आपको चेक करना है। और उसके अलावा अगर आपको दूसरा ओपन इंटरेस्ट चेक करने का है कि भाई कमर्शियल्स का पोजीशन मतलब ये एक करेंसी पेयर में बाय में है या सेल में है, तो एक कॉट रिपोर्ट आता है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। उसको आप गूगल में सर्च करो तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई यूरो में नेट जो कमर्शियल है वो लॉन्ग पोजीशन में है, रिटेल से शॉर्ट में है, तो वो सब से भी आप एक जजमेंट ले सकते हैं करके। जहां पर और ये अभी इसका ये ट्रेंड जो अप या डाउन रहता चार्ट देखने के अलावा, जैसे अपन यहाँ पे अपने शेयर मार्केट का जैसा रहता है कि अपन डाउ को फॉलो करते हैं, तो इसमें अपने को क्या फॉलो करना चाहिए? यूएस डॉलर को फॉलो करना चाहिए या और कुछ? नहीं, देखो आपको पता है इसमें करेंसी की ट्रेडिंग पेयर में होती है, जैसे हम यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं। हाँ सीधी बात है, अगर आपको डॉलर में अगर फॉलो करना है तो आपको डॉलर, अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो भी अच्छा है। अगर डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है इसका मतलब डॉलर का सेंटीमेंट वीक है, विच मीन डॉलर के सामने जितने भी पेयर है वो स्ट्रांग होगी। लेकिन ये एक बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करने का, आपको वो पेयर का चार्ट देखना है। क्योंकि हो सकता है यूरो यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है लेकिन जीबीपी यूएसडी स्ट्रांग नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उनके अपकमिंग ब्रेक्सिट के इश्यूज चल रहे हैं। तो इसीलिए इतना ये एनालिसिस करने के बाद भी जो आपको चार्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज वो ट्रेड लेके फंडामेंटल्स पे ट्रेड करना ही नहीं है सर, सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू सर।
हेलो हेलो हेलो, बोलिए सर। सर। हाँ सर, जब हम ट्रेंड को जज करने की कोशिश करते हैं तो लास्ट कैंडल पे जैसे अब करेक्शन हो रहा है तो वो करेक्शन है या रिवर्सल, मतलब वो उस स्टेज पर बाद में तो बड़ा आसान होता है पीछे जानना कि हाँ भाई ये करेक्शन था, ये रिवर्सल था, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो करेक्शन है या रिवर्सल है, उसको जज करने का तरीका क्या है? और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आप कहते हैं कि क्लोज हुआ, कोई भी जो भी आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ब्रेकआउट की या किसी की भी, तो पहले ही क्लोज के बाद हमें एंट्री ले लेनी चाहिए या फिर एक दो कैंडल्स हमें जाने देनी चाहिए रिकन्फर्मेशन के लिए? दो क्वेश्चन है सर। थैंक यू। पहले सर, आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। जो पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, जैसा ट्रेंड चेंज कब होगा, जब मैंने बोला जब वो मार्केट हायर लो बना रहा है और पुल बैक दे रहा है, जब तक वो प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करता है वो ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। आप उसको करेक्शन ही समझ के आपको चलना है, ठीक है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर मार्केट ने कोई लेवल ब्रेक किया तो हमें तुरंत एंट्री करना है, नहीं करना है, हमें वेट करना है कि वो लेवल को मार्केट वापस जब रिटेस्ट करने आएगा। और रिटेस्ट का मतलब इट शुड बी अ राउंडेड रिटेस्ट। आज ब्रेक किया, कल रिटेस्ट किया तो भी नहीं चलेगा। रिटेस्ट में तो 3-4 दिन के बाद होना चाहिए, क्योंकि वो बुल्स का कमिटमेंट दिखना चाहिए कि भाई वो लोग प्राइजेस को वो लेवल पे होल्ड करने के लिए तैयार है ऊपर में। अगर आज ब्रेक किया, कल रिटेस्ट किया, मतलब अगेन इट्स अ साइन ऑफ अ फॉल्स ब्रेक, तो भी आपको एंट्री नहीं करनी है सर। और सर एक जो आपने रिपोर्ट का नाम लिया गूगल सर, जरा उसे स्लोली जरा रिपीट कर दीजिए, ये चैट बॉक्स में उसका नाम डाल दीजिए, जो रिपोर्ट आपने कहा ना। इट इज कॉल्ड कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। यस, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। तो इसमें क्या कवर हो जाता है सर इस रिपोर्ट के अंदर? इस हमें रिपोर्ट क्या में देखना आता चाहिए? है क्या भाई, कमर्शियल्स का जो पोजीशन है वो ज्यादा लॉन्ग की तरफ है या शॉर्ट की तरफ है। नॉन कमर्शियल मतलब अपने जैसे रिटेल्स है, उनका शॉर्ट में है या लॉन्ग में है। तो मार्केट जो भी है ना, नॉन कमर्शियल्स के ज्यादा करके अगेंस्ट ही चलती है और कमर्शियल्स के ही फेवर में चलती है। तो लेकिन तो ये आपको खाली आपको सिर्फ चेक करना है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है सर, क्योंकि ये रिपोर्ट एवरी वीक अपडेट होती है, एवरी मंडे, इसीलिए। और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, इंडियन पेयर्स के लिए या इंटरनेशनल मतलब? आई थिंक सो सब में आप यूज कर सकते हो। यूएसडी आईएनआर भी अगर आपको क्वार्टर रिपोर्ट देखने का तो आप देख सकते हो सर। ओके। और जो करेंसी पेयर्स हैं मोस्टली ट्रेडेड तो यूएसडी आईएनआर ही है, लेकिन कभी कभी वो काफी स्टेबल चल रहा होता है, जैसे अभी पीछे पाउंड और इसका वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा था। तो आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आप स्टार्ट विद विच आर द सेफेस्ट करेंसी पेयर जिसमें ट्रेड करना चाहिए, आपकी एडवाइस क्या है सर? मेजर करेंसी पे जिनका ट्रेडिंग डॉलर के साथ हो रहा है, जैसे यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, एनजेड यूएसडी, जो पहले मेजर पेयर है उससे कीजिए स्टार्ट। मेजर पेयर्स में एक बार आपको कॉन्फिडेंस आने लगा, देन क्रॉस पेयर में जाइए और उसके बाद ही आप गोल्ड सिल्वर में जाइए ट्रेड करने के लिए। तो कुछ स्ट्रेटेजी सर आपके प्लेटफॉर्म पे बिगिनर्स के लिए अवेलेबल होती हैं कि यहाँ से मतलब छोटे एक एक लॉट से आप शुरू करें? तो मतलब कोई जो स्टार्ट करना चाहते हैं करेंसी में, क्योंकि इक्विटी के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन जो करेंसी पेयर्स हैं, तो आपने कुछ ऐसा एमटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा डाला है आपने स्ट्रेटेजी शुरू में, चाहे डेमो टेस्टिंग के लिए हो, चाहे पेपर ट्रेडिंग के लिए हो, या छोटा सा डेमो जैसे कहते हैं अकाउंट ट्रायल हमारे टेस्टिंग? पास, हाँ, डेमो अकाउंट अवेलेबल है जिसमें स्ट्रेटेजीज आप अपनी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकर कोई स्ट्रेटेजी नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्रेटेजी फेल जाती है तो फिर क्लाइंट हमें ही बोलेगा वो हिसाब से। तो आपको स्ट्रेटेजीज अपने हिसाब से ट्राई करना है, और जो आप इम्प्लीमेंट स्टॉक मार्केट में करते हो उसी को भी यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि डेमो में अगर आप अगर गलती भी हो रही है तो आपको उसके लिए मतलब खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा सर। हाँ सर। तो ये जो डेमो ट्रेडिंग जब हम करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स में, मैंने आपके पे ट्राई नहीं करा है अभी क्योंकि नया अकाउंट खोला है आज भी, तो जो डेमो ट्रेडिंग है वो जो मतलब बिल्कुल लाइव डेटा के हिसाब से फीडबैक दे रहा होता है, या मनी भाई की तरह वो लैगिंग के साथ आ रहा है, तो फिर उसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है स्टॉप लॉसेस वगैरह का? नहीं, वैसा नहीं है। डेमो जो हमारा डेमो है और जो रियल मार्केट चलती है सब कुछ सेम रहता है। अगर रियल में भी प्राइस उधर है तो डेमो का भी प्राइस आपको उधर ही दिखेगा सर जी। और सर हमें जो ट्रेडिंग है वो आपके चार्ट्स के बेसिस पे ही चलनी है, या हम कोई और आप हमें जैसे ट्रेडिंग व्यू या कोई और आप रिकमेंड करते हैं जिस चार्टिंग टूल को हम यूज करें, जो नॉर्मली या investing.com पे हम यूज करें, या और कोई टूल आप रिकमेंड करते हैं, या आपके ही प्लेटफॉर्म वाला हमें यूज करना चाहिए सर? देखो, चार्ट्स तो हमें आपको सिर्फ इतना मिलूंगा, कोई भी यूज करो, खाली इतना ध्यान रखना कि भाई जो डेली क्लोजिंग होती है वो न्यूयॉर्क क्लोजिंग टाइम से के हिसाब से होनी चाहिए, विच मीन्स रात में 3:30 बजे डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर ऐसा है जो 4:30 5:30 को भी क्लोज होता है,
तो उस पर आप रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्लोज होता है तब डेली मार्केट क्लोज हो जाती है इधर 5 मिनट के लिए। तो फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आप हमें रिकमेंड कर दीजिए ना प्लीज कि तो हमें किससे शुरू करना चाहिए। तो आप ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो बराबर NYSE के साथ ही टाई अप है, उनके हिसाब से ही होता है क्लोज। तो अगर आप हमारा भी चार्ट यूज करेंगे तो आप मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं सर जी। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, और sir. ये जो आपके वेबिनार्स हैं, क्योंकि आज बहुत मुश्किल से वो लॉगिन हुआ, क्योंकि वो जूम पर जो लिंक आप भेजते हैं, मैं आपको जस्ट फीडबैक दे रहा हूँ। नॉर्मली जूम के लिंक पे पासवर्ड सारे वेबिनार्स का ऑटोमेटिकली रहता है, लेकिन आपके वाले ने आज वो इतनी ट्रबल दी, वो लिंक तो कर रहा है जूम एप्लीकेशन को, लेकिन बार बार फिर वो ऑथेंटिकेशन मांगता है कि आपका अकाउंट जूम पर होना चाहिए। अब वो उसमें रजिस्टर करने में काफी टाइम लगा, मतलब पासवर्ड नहीं आया लिंक आपका, जो लिंक तो आया लेकिन उसके साथ पासवर्ड नहीं आया कनेक्ट होने, इसलिए पहला 15 मिनट में मिस ही कर गया आपका, मतलब वो एंट्री नहीं करने दिया उसने। तो फिर वो वरना जब तक जूम प्लेटफॉर्म आप पे यूट्यूब रजिस्टर पे नहीं भी करा। चेक कर सकते हैं। और मिस पायल, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जूम के मिस हुआ वो करके? जो हुआ उस पे हम लोग ध्यान देंगे कि आगे से ऐसा ना हो और आप लोग टाइम पे ज्वाइन हो पाए। क्योंकि हम जो चाहते थे एक्चुअली, मैं आपको 2 फीडबैक दे रहा हूँ ताकि सबके लिए फायदे के लिए होगा, आपका लिए भी इंप्रूवमेंट जी होगा। आपका जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। जी ट्रबल ये थी कि जो मैंने इस पे पहले भी रजिस्टर करा था हफ्ता 10 दिन पहले, कोई लिंक पहले नहीं आया, आज मुझे दोबारा रजिस्टर करना पड़ा। पहला तो ये ट्रबल हुआ। ओके सेकंड ट्रबल, वो लिंक में पासवर्ड नहीं था, मतलब हम वेट करते रहे, मैंने अपने कैलेंडर में सेव कर रखा था, मैंने आपको हफ्ता 10 दिन पहले मैंने आपका रजिस्टर किया था, लेकिन कोई लिंक नहीं आया। फिर मैं आज वेट करता रहा, फिर मैं आपकी साइट पर दोबारा गया, आज मैंने दोबारा रजिस्टर करा, तो जो लिंक आया वो उसमें पासवर्ड नहीं था। दूसरा फीडबैक। सेकंड, जो आपके वेबिनार्स हैं, ये यूट्यूब पे ही जाएंगे, या जो आपका जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे आपका अपना अकाउंट ओपन कर लिया तो वहां पर हमारे डैशबोर्ड में ये हम वहां से एक्सेस कर सकते हैं? मतलब आप नहीं जरा नहीं, सा उसमें। फिलहाल तो ये YouTube पे ही अपलोड हो रहे हैं। एम ट्रेडिंग इंडिया करके आप डालेंगे तो जितने हमारे वेबिनार्स हुए हैं आप सुन सकते हैं रिपीट में उनको। कुछ आपका मिस आउट जैसे आज हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता था, ये जो आपके वेबिनार्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हर हफ्ते होते हैं, या हमें टाइमली इंटीमेशन कैसे मिलेगा कब आपका अगला होने वाला? जैसे आपको 2 दिन या 3 दिन पहले एडवांस में बता दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वेबिनार जो है वो परसों ही है हमारा। तो ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन भी हम कह सकते हैं कि हम लोगों के वेबिनार्स रहने वाले हैं अभी। तो मैम, हर वेबिनार के लिए हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होके आ सकता है हमारे पास लिंक? मतलब क्या तरीका होगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। हर बार रजिस्टर करना पड़ेगा? जी। ओके। तो ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। या वेलकम। मैं उम्मीद करती हूँ सबके क्वेश्चंस का आंसर मिस्टर मेहरा ने सॉल्व किया होगा। सो मैं ये वेबिनार एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सर।